Assalamu alaikum. Dear students, we have studied the half part of our chapter HCF and LCM last week. Now we have seen how to find HCF by factorization method, also by division method, and we solved the problem set. Now see, the next topic of our chapter is least common multiple, that is LCM, that we have already studied in standard 6. What is LCM? The least common multiple of the given number is the smallest number that is divisible by each of the given numbers. दिए गए नंबर्स का LCM मतलब ऐसा छोटे से छोटा अदद जो कि बाकी नंबर्स से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड LCM ऑफ 4 and 8. नाउ फर्स्ट वी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4. मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 का टेबल आपको लिखना है. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, so on. What are multiples of 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48 and so on. They are infinite. Multiples are infinite. Factors are finite, but multiples of any number are infinite. Now what are the common multiples? See, 8 is common, 16 is common, 24 is common, 32 is common and 40 is common. आगे भी हमें बहुत सारे common multiple मिलेंगे, लेकिन हमें least सबसे छोटे वाले का काम है, इसलिए हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे. So common multiples are written here. Now which is the least among all these multiples? 8. सबसे छोटा कौन है इन common multiples में? 8. Therefore LCM of 4 and 8 is 8, है ना. ये हम 6th स्टैंडर्ड में इस तरीके से किए. अब 7th स्टैंडर्ड में हम we find LCM by factorization method. So first we factorize 4 and 8. जिस तरह हमने देखा किस तरह हम factorize करते हैं. So 4 and 8 both are divisible by 2. Therefore we write here 2. Now 2 2s are 4 and 2 4s are 8. Again 2 and 4 are divisible by 2. जब तक डिवाइड होते रहे हमें डिवाइड करना है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Now the product of the numbers in the column on the left and the numbers in the last row is nothing but the LCM of that numbers. So कौन से नंबर्स हैं ये लेफ्ट साइड के कॉलम में? 2 and 2. एंड लास्ट रो में कौन कौन है? 1 2. देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 2 into 2 into 1 into 2. 2 2s are 4, 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So 8 is the LCM of 4 and 8. मल्टीपल वाले मेथड से भी आंसर 8 आया और फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर 8 आया. Now see how to find the LCM of 3 numbers. For example, find the LCM of 16, 28 and 40. So we factorize these 3 numbers simultaneously. We arrange them in vertical order. Now see, use the tests of divisibility to find the prime number that divides all the numbers and then divide the given numbers. हमें क्या करना है? प्राइम नंबर ऐसा मालूम करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे. फॉर एग्जाम्पल 16, 28 and 40. All these 3 numbers are divided by 2, divisible by 2. Therefore we write here 2. 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and this 0 we write here. Now repeat this process for the quotients as many times as possible. जब तक तीनों नंबर्स किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होते रहे हमें डिवाइड करते रहना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 8, 14 and 20. अगेन ऑल दीज 3 numbers are divisible by 2. Therefore we write here 2. Now divide. 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 10s are 20. अब यहाँ पर 4, 7 और 10 ये तीनों किसी नंबर से कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल तीनों का नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर तीनों का नहीं है कि जिससे ये तीनों डिवाइड होती हो. तब क्या करना है? नाउ फाइंड द नंबर दैट डिवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑफ द नंबर्स. यानी जब तीनों का कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तब आपको कम से कम कोई 2 नंबर का कॉमन फैक्टर मालूम करना है. ऑब्टेन एंड डिवाइड दोज नंबर्स बाय द नंबर यू फाइंड, है ना. कोई 2 नंबर का आपको अगर फैक्टर मिला है तो आप उन दोनों नंबर को डिवाइड करो. डू दिस एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल. जब तक ऐसा होते रहे, नहीं 2 नंबर्स का भी आपको अगर फैक्टर मिलता रहे तो आप 2 नंबर्स को डिवाइड करते रहो जब तक पॉसिबल हो. इफ़ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड लीव इट एज इट इज़. अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो उसे वैसे ही छोड़ दो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 4 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं. 7 नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों तो हो सकते हैं ना. तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना है. यहाँ हम लिखेंगे 2. 2 2s are 4 and 2 5s are 10. 7 नहीं डिवाइड होता, 7 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे. नाउ स्टॉप व्हेन द ओनली कॉमन डिवाइजर यू गेट इज़ 1. अब यहाँ पर कोई 2 का भी कॉमन डिवाइजर नहीं है
2 और 7 का कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, 7 और 5 का कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, इसी तरह 2 और 5 का भी कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। अब इन सब का कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो यहाँ पर हमें रोक देना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट कॉलम में जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट मालूम करना है। मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट बाय द नंबर्स इन द लास्ट रो, इनका प्रोडक्ट मालूम करने के बाद ये जो लास्ट रो के नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज नथिंग बट द एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, है ना। सबका प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 560। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 16, 28 एंड 40 इज इक्वल टू 560। Now see the next example. Find the LCM and HCF of 9 and 12. Compare the product of the LCM and HCF with the product of the given numbers. यानी हमें 9 और 12 का HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। देन दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट लेना है और इन दोनों नंबर्स का यानी 9 और 12 का भी प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है। Now see, we factorize 9 and 12. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 9 and 12 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर वी राइट 3. नाउ डिवाइड 9 and 12 by 3. 3 3s are 9 and 3 4s are 12. Now there is no common factor of 3 and 4 except 1. Therefore stop factorization. Therefore what is HCF? ये जो नंबर होगा ये HCF होगा. HCF is 3 and what is LCM? ये कॉलम के नंबर और ये लास्ट रो के तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट. Therefore 3 into 3 into 4. 3 3s are 9, 9 4s are 36. So LCM is 36 and HCF is 3. Now product of the two given numbers. दोनों numbers कौन कौन थे? 9 into 2, 9 and 12. So what is the product? 12 9s are 108. Also HCF into LCM, है ना. HCF क्या था? 3 और LCM कितना था? 36. What is the product? 3 6 are 18. We write 8. 3 3s are 9 plus 1 10. Therefore from this we can observe that the product of the given two numbers is equal to the product of HCF and LCM. So product of the two given numbers is equal to HCF into LCM, means product of HCF and LCM. You can verify this statement in so many examples. किसी भी एग्जाम्पल में आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हो कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है.